As each new dynasty come to power, king wanted to emphasize their moral right to be ruler. Constructing place of worship provide to ruler with the chance to proclaim their close relationship with the god, especially important in an age of rapid political changes. Rulers also offered portage to the learned and the plots and tries to transform their capitals and cities into a great culture centers that brought fame to their rule and their realm. It was widely believed that the rule of the just king would be an age of plenty when the heavens would not without rain. At the same time, making precious water available by constructing tank and resolving was their highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for the constructing a large reservoir just outside Delhi, Khuna. It was called a Hoja Sultani, or the King's Reservoir. Can you find the on map first in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of the temple, mosque और a गुरुद्वारा. अब क्या हुआ, जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे टैंक्स बनवाना शुरू कर दिया. दिल्ली में एक टैंक बनवाया, किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसको कि हौज ए सुल्तानी कहा जाता था, मतलब किंग्स रिजर्वियर. मतलब वो उन्होंने टैंक्स का निर्माण भी कराया, बिल्डिंग्स के साथ साथ टैंक्स का भी निर्माण कराया जो आम जनता के लिए यूज़फुल रह सके, आम जनता उस टैंक का यूज़ कर सके, उसमें पानी भर के यूज़ कर सके. जैसे कुछ जगह पर उन्होंने टेम्पल्स, मंदिरों में बनवाया था, कुछ जगह पर मस्जिदों में बनवाया था. मस्जिद में उन्होंने स्मॉल टैंक बनवाया था, कहाँ, जामी मस्जिद में, ओके. और गुरुद्वारा में प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिख्स, जो कि गुरुद्वारा होता है वो किसका होता है, सिखों का प्लेस होता है ना, सिखों का मंदिर होता है ना गुरुद्वारा, तो वहाँ पर भी उन्होंने टैंक बनवाया था. और जामी मस्जिद में भी उन्होंने क्या किया था, टैंक का निर्माण कराया था. वाई वर द टेम्पल्स टारगेटेड, अब टेम्पल्स ही टारगेटेड क्यों होते थे, बिकॉज द किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ. इट इज़ नॉट टू सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक वन अदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स. अब क्या होता था, जब आक्रमण होता था, जब राजा एक दूसरे पर, जो मुग़ल शासक थे वो अगर किसी राजा पे राज कर, मतलब किसी के साथ युद्ध करते थे, वो सबसे पहले टेम्पल्स का जो टारगेट बनाते थे, वो टेम्पल्स को सबसे पहले ध्वस्त कर देते थे, सबसे पहले टेम्पल्स को ही अटैक करते थे वो, और उसके बाद ही वो दूसरी बिल्डिंग्स पर अटैक करते थे. इन दिस अर्लियर 19th century व्हेन अ पंड्या किंग श्री वल्लभा इन्वाइटेड द श्रीलंका एंड डिफेटेड द किंग सेना फर्स्ट, द बौद्धिस्ट monk and chronicle Dhammakti noticed. He removed all the valuable, the statue of Buddha made earlier of gold and jewel pieces and golden images in the various monasteries. All these seized the willow of pride and sheenless ruler that be average, and the next sheenless ruler, Sena II, ordered his general to invade the Madurai, the capital of Pandyas. The Buddhist chronicle noticed that the expedition made the special effort and find the restored the gold statue of Buddha. अब उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड स्टैचू बुद्धा की थी उसको भी क्या करने का, डिस्ट्रॉय करने का सोचा, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचा. और जो मदुरई की कैपिटल थी वो, मतलब मदुरई जो थी उसकी कैपिटल, मतलब पंड्या राजा थे वो वहाँ राज करते थे मदुरई में. Similarly, the earlier 11th century when the Cholas king Rajendra I first was built Shiva temple his capital, and he filled the with prize the statue seized from the defeated rulers. और इसी की तरह 11th सेंचुरी में चोला किंग थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने शिव टेम्पल का निर्माण कराया अपनी राजधानी में, और उन्होंने उस स्टैचू पर प्राइज भी डिसाइड किया, मतलब जो राजा से हारेगा, मतलब वो जो राजा उनको डिफीट करेगा तो वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे. An incomplete list included the sun paradise from Chalukya, the Ganesha statue, several statue of Durga, Nandi statue from the eastern Chalukya, and image of Bhairava
and Bhairavi from the Kalingas of Odisha and Kali statue from the Palace of Bengal. Sultan Mahmud of Ghazni was contemporary of Rajendra I. During his campaigning in the subcontinent, he attacked the temples and defeated the kings and looted with their wealth and ideals. अब जो सुल्तान मोहम्मद गजनी था उसने क्या किया, उसने भारत में आकर, मध्यकालीन भारत में आकर उसने सभी राजाओं को हराकर उनके जो देवी देवता थे जो भी थे उनको, उनकी प्रतिमाएं जो थी वो नष्ट कर दी थी मतलब, और जो भी वहाँ पर गोल्ड या सिल्वर जो भी थी उन सब की लूट मचा दी थी, मतलब लूट लिया था सारा चीज़ें. सुल्तान महमूद वाज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर फॉर दैट टाइम. और सुल्तान महमूद गजनी जो था उस समय का बहुत ही महान शासक था और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था. बट by destroying temples especially the one at सोमनाथ, और उसने डिस्ट्रॉय किया था सोमनाथ में शिव जी का मंदिर था उसको डिस्ट्रॉय किया था. ही ट्राइड टू क्रिएट अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम. वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो कोशिश कर रहा था कि लोग उसे इस्लाम का हीरो बोले. इन द पॉलिटिकल कल्चर द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड द रूलर्स. अब वो इसलिए ऐसा करना चाहता था मिडिल एज में कि लोग उसको इस्लाम का हीरो माने और मतलब उसकी सारी बातें सुने, इसलिए वो ज़्यादातर हिंदुओं के मंदिरों पर अटैक कर रहा था. और उसने सबसे ज़्यादा अटैक जितने मंदिर उसके मस्जिद के पास जितने भी मंदिर थे उन सबको उसने ध्वस्त करवा दिया था, मतलब पूरी तरह से नष्ट कर दिया था. Garden tombs and forts under the Mughal architecture become more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were personalized interested इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अब गार्डन टॉम्स और फोर्ट्स जो थे वो मुग़ल के ही अंदर आते थे. उसका जो आर्किटेक्चर्स था ना, उसका कॉम्प्लेक्शन, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली शाहजहाँ, वो क्या करते थे, वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे किसमें, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर describe his interest in planning and laying out the formal gardens placed within a rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by the artificial channels. अब जो बाबर था उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया है कि उसको गार्डन का बहुत शौक़ था और ऐसी जगह जहाँ पर वो रेक्टेंगुलर वॉल्स हो और जो 4 क्वार्टर्स में मतलब डिवाइडेड हो, उसको इस तरीके का बहुत शौक़ था. These gardens were called चार बाग, जिसको कि चार बाग कहा जाता था ऐसे गार्डन्स को. 4 gardens because of their symmetrical division into quarters beginning with Akbar. Some of the most beautiful चार बाग were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir. ये देखिए, ये जस्ट लाइक अ चार बाग, इसको चार बाग बोलते हैं. उसने चार बाग का निर्माण कराया सिमेट्रिकल शेप में, क्वार्टर्स में. एंड उसने कब से कराया, अकबर ने उसमें सहयोग दिया. अकबर ने, जहांगीर ने, जो कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है, जो कि कश्मीर में है. शाहजहाँ ने उसको कश्मीर में बनाया है, आगरा में बनाया है और दिल्ली में बनाया है. There were several important architectural innovations during Akbar region. अब अकबर के काल में भी बहुत सारे आर्किटेक्चर इनोवेशंस हुए थे, बहुत अच्छे. फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्ट्स टर्न इनटू टॉम्स फॉर हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर. अब अकबर के जो आर्किटेक्चर्स अकबर के काल में हुए थे उन्होंने किसका निर्माण कराया, सेंट्रल एशियन एंसेस्टर, मतलब उनके एंसेस्टर्स को टॉम के रूप में निर्माण कराया. तैमूर, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे बिकम अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुग़ल. टॉम क्या होता है, ये ऐसे इस तरफ से छतरी टाइप का ढका हुआ रहता है, गोल गुम्बज टाइप का, ठीक है, वो होता है टॉम. ये है टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 टू 1571 एंड दिस वन इज 1519 पेंटिंग ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट द चार बाग, काबुल. नोट हाउ द interesting channels on the path created the characterized चार बाग्स एंड डिज़ाइन. ये किस तरह से चार बाग की डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट हुई है और बनाई गई है. Architecture first visible of Humayun's tomb. The tomb was placed in the center of huge formal चार बाग and built a tradition known as the 8 Paradise and hushed Bishti.
a central hall surrounded by the 8 rooms. The building was constructed with the red sandstone edges with the white marbles. अब जो हुमायूं का जो टॉम था वो किस तरह से बना हुआ है, वो सेंट्रल में एक बड़े से फॉर्मल से 4 बाग के रूप में बना हुआ है जिसको कि 8 पैराडाइज बोलते हैं। और उसमें जो सेंट्रल हॉल है वो चारों तरफ से 8 रूमों से घिरा हुआ है और बिल्डिंग जो है उसके अंदर रेड सैंडस्टोन मतलब और वाइट मार्बल्स का यूज़ हुआ है। आप कभी दिल्ली जाना तो वहाँ जाके देखना। It was during Shahjahan's region in the different elements Mughal architecture was fused together in a grand harmony synthesized. His region witnessed a huge amount of construction activity especially in Agra and Delhi. मतलब मुग़लों के टाइम की जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो ज़्यादातर दिल्ली और आगरा में हुआ था क्योंकि आगरा उनकी कैपिटल हुआ करती थी पहले। द सेरेमोनियल हॉल, द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास और दीवाने आम वर केयरफुली प्लान, और जो लोगों के लिए दीवाने खास और दीवाने आम जो था दिल्ली में है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है। प्लेस्ड विद अ लार्ज कोर्टयार्ड, जो कि एक बड़े से कोर्टयार्ड में बनाया है। दिस कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब एज चिली सतून और 40 पिलर्स हॉल, जिसके अंदर चिली सुतन एंड 40 पिलर हैं उस हॉल के अंदर। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बाय रिजेंबल अ मॉस्क्यू। अब शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल है वो थोड़ा थोड़ा मॉस्क्यू से मिलता जुलता है। द पेडेस्ट्रियल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज अ कबीला। The direction faced by Muslim at prayer, since everybody faced that direction when court was session. The idea of the king as a representative of gods on the earth suggested by these architectures. The construction अब शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल है उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो एक मॉस्क्यू जैसा प्रतीत होता है जिसको कि एक कबीला के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पर मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं और एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन द कोर्ट वॉज सेशन, और सबका मतलब फेस ऐसे रहता है जब कोर्ट शुरू होती है तो उस तरफ ही सबका फेस रहता है। द आइडिया इज़ द किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो ये जो आइडिया था वो राजा ने जो दिया था वो किसके लिए दिया था? गॉड के लिए, कि हम गॉड को इबादत करें, मतलब भगवान की इबादत करें। इस तरह से उन्होंने अपना जो भी हॉल था उसका कंस्ट्रक्शन कराया था।